अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 टीवी कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4 टीवी कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने 1,12,310 करोड़ रुपए का बजट जम्मू कश्मीर असम्बली में किया पेश। AAY स्कीम के तहत राशन बिजली की मुफ्त फराहमी का ऐलान। सेहत तालीम शोबे सियाहत को दी गई तवज्जो। जो वादे किए गए थे बजट में इसको शामिल किया गया। NC लीडरान ने बजट को करार दिया आवाम दोस्त। कांग्रेस ने भी NC हुकूमत के पेश करदा बजट का किया खैर मकदम। गुड इंटेंशन वीक इम्प्लीमेंटेशन जीरो एक्शन। बजट पर BDP के रुकन असम्बली वहीदुर रहमान पर्रा का रिमार्क। बीजेपी रुकने असम्बली सुनील शर्मा ने स्पीकर को लिखा मकतूब। सेशन के दौरान पाकिस्तान से मुताल्लिक़ किए गए रिमार्क्स हज़फ करने का किया मुतालबा। पार्टी लाइन से हटकर विखार रसूल वानी का बानीहाल में एहतजाजी मुजाहरा। महकमे बरक़ी और जम्मू कश्मीर सरकार के खिलाफ किया सख्त एहतजाज। यासीन मलिक के मुकदमे की समाअत को सुप्रीम कोर्ट ने किया एडजर्न। 4 अप्रैल को होगी आइंदा समाअत। और अब खबरों की तफसील। तकरीबन 7 बरस बाद आज जम्मू कश्मीर असम्बली में सालाना बजट पेश किया गया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज अपनी हुकूमत का पहला बजट पेश किया। बजट में अवाम दोस्त बजट को करार दिया गया। उन्होंने कई एक ऐलानात किए। साल 2025-26 के लिए 1,12,310 करोड़ रुपए का बजट वज़ीर आला ने असम्बली में पेश किया। AAY स्कीम के तहत आने वाले तमाम यानी ख़ानदानों में घर के फ़ी मेंबर को 10 किलो अनाज की मुफ्त फराहमी का 1 अप्रैल से आगाज़ किया जाएगा। बजट साल 2025-26 में शोबे सेहत तालीम व सियाहत को मजबूत बनाने और सहूलियात से आरास्ता करने का ऐलान किया गया है। बजट में जम्मू कश्मीर की मईशत को फ़ाल व मजबूत बनाने के लिए उमूर पर तवज्जो दी गई। जम्मू कश्मीर बजट में 815 करोड़ रुपए शोबे ज़राअत, 390 करोड़ रुपए शोबे सियाहत के फ़रोग़ के लिए मुख्तस करने का ऐलान किया गया। हुकूमत ने 75 लाख नौजवानों को खेल की सरगर्मियों में शामिल करने के लिए मनसूबे का ऐलान किया। कमज़ोर तबक़ात बशमूल बुजुर्ग शहरियों, बेवाओं, माजूरीन के वज़ाइफ में इजाफा करने का ऐलान किया गया है। AAY स्कीम के तहत आने वाले ख़ानदानों के लिए 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी की सप्लाई। PM सूर्या घर बिजली योजना के तहत फ़ी ख़ानदान 200 यूनिट बिजली मुफ्त फराहम करने की भी बात की गई है। Resulting in the formation of an expert committee to resolve financial issues. I met with the Honourable Prime Minister, Union Home Minister and Union Finance Minister on multiple occasions. I am pleased to share that our efforts have paid off. The central government has approved special assistance for J&K and will support fiscal reforms to enhance revenue and expenditure management. The budget for J&K Police, which was around 11% of our allocation, has been migrated to the MHA budget from 24-25 onward. In addition to this, J&K will receive an extra 5,000 crores in grants from 24-25 and 25-26. I sincerely thank the Honourable Prime Minister, Union Home Minister and Union Finance Minister for their unwavering support in strengthening J&K's fiscal health and realising its vision for growth and prosperity. The journey of Jammu and Kashmir has been one of resilience and determination. Our government is committed to transforming Jammu and Kashmir into a modern, progressive and economically vibrant region. Our government endeavours to frame a roadmap to reclaim the prudence, sagacity and self-confidence which have been the cornerstones of our identity for generations. Our challenges are vast and our limitations are many, but we must collectively pledge to confront these challenges head-on with unwavering resolve. I have endeavoured to prepare this maiden budget as a true reflection of the dreams of our people, the needs of our future generations and the aspirations of every citizen of Jammu and Kashmir. I once again express my gratitude to the people of J&K
for their enthusiastic and confident participation in the recent assembly elections. The unprecedented voter turnout is a clear testament to their unwavering resolve to move beyond the shadows of past turmoil and actively contribute to the journey of development and progress. By granting us a strong mandate, they have entrusted us with the responsibility to serve them. Today, they look to the government with renewed hope and expectations for an environment that fosters political empowerment, meaningful employment, sustainable development, social inclusivity, and robust economic growth. I assure them that we will serve them with sincerity and fulfill their aspirations for a prosperous and thriving Jammu and Kashmir. The restoration of full statehood is a deeply cherished aspiration of the people of Jammu and Kashmir, and our government remains resolute in working towards its fulfillment. My government is committed to strengthening grassroots democracy by empowering Panchayati Raj institutions and urban local bodies, which play a crucial role in local governance and development. Our government is committed to holding elections to these bodies, reinforcing our commitment to accountable, inclusive, and decentralized governance for the holistic development of Jammu and Kashmir. This budget emphasizes inclusive growth, fiscal prudence, and strategic investments in infrastructure, agriculture, industry, healthcare, education, and digital governance. We are focused on bridging regional disparities, empowering youth and women, and fostering a business-friendly environment to attract investments and innovation to ensure this budget truly reflects the aspirations of our people. We engaged with elected representatives, industry leaders, and key stakeholders, incorporating their insights to create a people-centric roadmap for a better quality of life for all. We have also set new standards of engagement with and feedback from people's representatives by directly engaging with each member of this august house in the budget consultation process. Jammu and Kashmir is at the threshold of a new era of peace and prosperity, with a semblance of normalcy returning after over 3.5 decades of turmoil. This improved environment is contributing to economic progress, with J&K's economy expanding from 1,64,103 crores in 2019-20 to 2,45,22 crores in 23-24. In 24-25, the primary, secondary and tertiary sectors are projected to contribute 20, 18 and 61.7% to GSBA respectively. It is a testament to the strong foundations laid by the leadership of J&K that despite its geographical challenges and multi-decade turmoil, the social economic indicators continue. वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज बजट पेश करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी मुखातब किया और मीडिया की जानिब से बजट से मुताल्लिक़ पूछे जाने वाले सवालात के जवाब दिए। इसलिए मिलके फिलहाल यूटी में ये जिम्मेदारी हमारी साझा है, एलजी साहब की भी और इलेक्टेड गवर्नमेंट की। मिलके हमारी कोशिश होगी कि कश्मीर में उस तरह के हालात कायम किए जाएं जिससे कि कश्मीरी पंडित जो वहां से निकल गए वो अपनी मर्जी से वापस जा सके। Our emphasis is not on one particular sector. Our emphasis is on taking J&K forward in a balanced manner, focusing. नायब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर सुरेंद्र कुमार चौधरी ने जम्मू कश्मीर बजट को गरीब और अवाम दोस्त बजट करार दिया। सीएम साहब ने जब वो 2000 बिजली का जिक्र किया तो अपोजिशन को पूरा करंट ही लग गया था। हमने सोचा बिजली का मुफ्त करंट इनको लग गया, तो लिहाजा एक ऐसा बजट जो एक आम से आम वो गरीब आदमी जो दूर दरार पहाड़ों में बसता है या शहरों की जो ऐसी कॉलोनियों में बसता है जिसका कोई गुजारा नहीं, हर आदमी महसूस करेगा कि जो बजट ये आया है ये बजट हम सब के लिए, चाहे महिलाएं हैं, चाहे पुरुष हैं, चाहे बच्चे हैं। आप स्पोर्ट्स में देख लीजिए, आप ट्राइबल्स में देख लीजिए, आप पीडब्ल्यूडी में देख लीजिए, आप हेल्थ में देख लीजिए, आप एजुकेशन में देख लीजिए, आप हर डिपार्टमेंट को देखिए। जो भी डिपार्टमेंट है हर तरफ से ये डिपार्टमेंट, ये बजट जो उमर अब्दुल्ला सरकार का पहला बजट है, एक ऐसा बजट है जो सारे लोग महसूस करेंगे कि हमने वो सरकार चुनी है जो हम लोगों की सोच।
बीजेपी रुकन असम्बली व अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने अब स्पीकर असम्बली को एक मकतूब हवाले करते हुए ऐवान में पाकिस्तान से मुताल्लिक़ किए गए रिमार्क्स को हज़फ करने की मांग की है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने स्पीकर अब्दुल रहीम राथर को एक मकतूब लिखा है, जिसमें उन्होंने मुतालबा किया कि असम्बली की कार्रवाई के सरकारी रिकॉर्ड से ऐसे तमाम यानी रिमार्क्स या बहस को या जुमलों को फौरी तौर पर हज़फ किया जाए जो पाकिस्तान का ऐसा हवाला देते हैं या फिर कौमी मफादात के वो खिलाफ समझे जाएंगे। और एनसी रुकन असम्बली सलमान सागर ने कहा है कि एनसी ने अपने मंशूर में अवाम से जो वादे किए थे वो आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पेश करदा बजट में शामिल किए हैं। बीजेपी ने आज ये कहा कि ये छोटी सी यूटी है, उनको शर्म आनी चाहिए कि एक बड़ी स्टेट को यूटी बनाने वाले यही लोग हैं और यही इसको बड़े ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे कोई इनने किला फतह किया हुआ है। शर्म की बात है, इनकी वजह से हम यूटी में हैं आज। एट द सेम टाइम मैं आज के मौके का फायदा उठाऊंगा, उमर साहब को, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को, जो फाइनेंस मिनिस्टर भी है हमारे, उनको मुबारकबाद देता हूं। जो उन्हें वादे किए थे उसकी उनको पूरा करने की एक बहुत अच्छी शुरुआत हो गई आज। चाहे वो 200 यूनिट फ्री, चाहे वो राशन, चाहे वो फिर असिस्टेंट मैरिज असिस्टेंस बढ़ाने की बात है, हमारी लेडीज, हमारी बहनों को, माओं को जो फ्री बस राइड्स की बात है, या उसके मजीद भी ऐसी बड़ी चीजें हो गई है। रेवेन्यू डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो टैक्सेस है माफ किए गए, जो बुलेट लिस्ट में दिए जाएंगे, तो वो जो एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ करता था, जो बहुत एक चोरी हुआ करती थी टैक्स की, वो सब खत्म हो जाएगी। उसके मजीद एक बहुत बड़े पैमाने पे हेल्थ सेक्टर में और यूथ एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो प्रोग्राम बताए गए हैं बजट में, उसके लिए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मुबारकबादी के मुस्तहिक है। हम उनको मुबारकबाद देते हैं और पूरा सपोर्ट करते हैं इस बजट का, और हमें यकीन है कि ये जो आज बजट पेश किया गया है ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट होगा और इससे यहाँ के लोगों के हालात बदल जाएंगे और खुशहाली की ओर जाएंगे। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा ने जम्मू कश्मीर बजट को अवाम दोस्त बजट करार दिया। उन्होंने इशारा दिया कि कांग्रेस को फौरी तौर पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन वो अमल आवरी के तरीक़ेकार का बारीक बीनी से जायज़ा लेगी। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी JKPCC के सरबराह तारिक हमीद कर्रा ने जुमा के रोज़ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से पेश करदा जम्मू कश्मीर के बजट को अवाम दोस्त और फ़ायदा मंद करार दिया, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि मुमकिना जो खला है इसकी निशानदेही करने के लिए तफसीली इसका जायज़ा लेने की ज़रूरत है। बजट पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि गरीब तरीन ख़ानदानों को फलाह व बहबूद पर तवज्जो देने के साथ तमाम बड़े यानी शोबाजात पर तवज्जो दी गई है। हमने अब तक जो कुछ यानी देखा है, मुलाहिज़ा किया है, इससे लगता है कि बजट अवाम के हक़ में है। इसमें बहुत ज़्यादा मुस्बत मामलात हैं और तकरीबन तमाम यानी शोबाजात पर इसमें तवज्जो दी गई है। एनसी हुकूमत के पेश करदा पहले बजट को अपोजिशन PDP रुकन असम्बली वहीदुर रहमान पर्रा ने मायूस कुन करार दिया। PDP के यूथ लीडर व रुकन असम्बली पुलवामा वहीदुर रहमान पर्रा ने बजट को अच्छी नीयत, कमज़ोर निफाज और ज़ीरो एक्शन करार दिया। वहीदुर रहमान पर्रा ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस NC ने इंतखाबात के दौरान जो वादा किया था और वो ज़मीनी तौर पर पूरा करने से खासिर हैं। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP के रहनुमा और MLA पुलवामा ने जुमा को वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से पेश करदा बजट पर तनकीद करते हुए रिमार्क किया कि इस बजट में कोई एक्शन नज़र नहीं आता। आम आदमी पार्टी रुकन असम्बली मेराज मलिक ने बजट से मुतालिक अपना रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि वो ना बजट से खुश हैं और ना ही नाराज़ हैं। उन्होंने कई एक नुकात को बेहतर करार दिया, लेकिन साथ ही डेली वेजेस के बशमूल दीगर शोबाजात को यानी बजट में इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत पर जोर दिया। इंतजाम में 50,000 होता था, अब 75,000 कर दिया। बहुत सारे ऐसे काम हुए, जैसे गवर्नमेंट हॉस्टल को बेहतर बनाने की बात हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनेगा, नए 2000 के आसपास स्कूल नए बनेंगे, मॉडर्न स्कूल बनेंगे, अच्छी बात है, नई रिक्रूटमेंट होगी। लेकिन मोटी एक नजर जो थी वो कैजुअल लेबरर्स थी, ये जो छोटा मुलाजिम तबका है उनको उम्मीदें थी, मिडिल क्लास के लोगों को, उस पे बारे में बजट में बात नहीं हुई है। अभी आने वाले कल में डिस्कशन बजट के बारे में मुझसे बेहतर आवाम रिएक्ट करेगी, आवाम रिएक्शन देगी। और ऐसा भी नहीं है,
उमर साहब ने ये भी कहा है कि आने वाले, ये जरूरी नहीं है कि हम अपना वादा पूरा नहीं करेंगे, अगर आज नहीं हो रहा है तो आने वाले 5 साल दिए हैं लोगों ने तो उस पर करेंगे। लोगों को अगर भरोसा होगा तो लोग अपनी बात मानेंगे या सरकार की बात मानेंगे। मैं इस बजट से ना उतना खुश हूँ ना उतना नाराज। वज़ीर सेहत व तालीम सकीना यट्टू ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में हर बरस कैंसर के केसेस में 2 से 3% इजाफा हो रहा है। हर साल के कैंसर के केसेस में 2 से 3% इजाफा हो रहा है। असम्बली में MLA तनवीर सादिक के सवाल के जवाब में सकीना यट्टू ने ये एदाद व शुमार बताए। MLA डूरू और साबिक सदर प्रदेश कांग्रेस जम्मू कश्मीर गुलाम अहमद मीर ने जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से पेश करदा बजट का खैर मकदम करते हुए कहा कि इस तरह के बजट को तामीर, तरक्की और सबकी फलाह व बहबूद वाला बजट कहा जा सकता है। GA मीर ने कहा कि इस बजट में हर तबके से ताल्लुक़ रखने वालों का पूरा ख्याल रखा गया है। विकसित भारत को बनाने के लिए ये इकदाम सही है। जो जम्मू कश्मीर सरकार ने आज जिस तरह का बजट दिया है, ये रियल सेंस में, जिसमें हर तबके जात को, पहाड़ पर रहने वाले को, प्लेन में रहने वाले को, बॉर्डर पर रहने वाले का ख्याल रखा गया, इससे विकसित भारत बनता है। एक जानिब कांग्रेसी लीडरान बजट का खैर मकदम कर रहे हैं। इत्तेहादी जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस के पेश करदा बजट को सदर प्रदेश कांग्रेस तारिक हमीद कर्रा, साबिक सदर प्रदेश कांग्रेस GA मीर ने बजट को अवाम दोस्त करार दिया, लेकिन इसके बरक्स साबिक सदर प्रदेश कांग्रेस जम्मू कश्मीर व साबिक MLA बानीहाल वक़ार रसूलवानी ने कांग्रेस की इत्तेहादी बरसरे कार पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और इनकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मार्च मुनज़्ज़म किया। उन्होंने आज जम्मू कश्मीर सरकार का अलामती पुतला भी नजर आतिश किया। बिजली के बढ़ते चार्जेस, माह रमज़ान में बिजली कटौती के खिलाफ महकमा बरक़ी और NC हुकूमत के खिलाफ वक़ार रसूलवानी की सरबराही में सख्त एहतजाज किया गया और मार्च निकाला गया। गूल सगलदान के लोगों से पूछो, चमलवास के लोगों से पूछो, चापनाड़ी ठाची के लोगों से पूछो, दुलीगांव नाले के लोगों से पूछो, चाइलो और हरदिश और इस बनाल के पूरे इलाके से पूछो, कहीं आपको शहरी और इफ्तियारी में बिजली होती है? बिल्कुल नहीं होती है। लोग बहुत परेशान है, हमें मजबूरन ये प्रोटेस्ट करने पड़ते हैं। सरकार को जागना चाहिए। और आप देखो बिजली बिले जो हमारे वक्त में जब मैं MLA था और मिनिस्टर था, 150 से लेके 250 रुपए तक बिल थी, 10 रुपए नहीं बढ़ते थे। आज बिजली बिले 1000 से शुरू है, 2,500-3,000 हजार तक। 3 महीने ये जो इलाके हैं, चाहे पोगल है, नील है, मोहम्मद है, बिजली ही नहीं देखी लोगों ने, फिर भी बिजली बिले आ रही है। आज का प्रोटेस्ट है वो शहरी और इफ्तियारी के टाइम में बिजली रहनी चाहिए, लोगों को बिजली होनी चाहिए। आज हम वार्निंग करते हैं, ये अवामी मसला है, कोई पार्टीबाजी नहीं है। इधर एक AWE चोर रखा है जो बड़ा खास बना है। आज के MLA ने अपना खास बना के रखा है क्योंकि उसको 24 आवर बिजली दे दी उसने। NC लीडर व MLA हल्का असम्बली खान साहब सैफुद्दीन ने कहा है कि आज उमर अब्दुल्ला सरकार ने इंतखाबी मंशूर में अवाम से जो वादे किए थे उन्हीं बुनियादों पर जम्मू कश्मीर बजट पेश किया गया। उन्होंने बजट को अवाम दोस्त करार देते हुए अपने यकीन का इजहार किया कि पेश करदा बजट से अवाम को ज़रूर राहत मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र है अल्लाह का कि जो हमारी पार्टी ने और ख़ासकर उमर साहब ने मैनिफेस्टो लोगों के सामने रखा था इलेक्शन से पहले, आज वो मैनिफेस्टो उन्होंने बजट में इनकर्ड करके इंशाअल्लाह रहमान लोगों को राहत मिलेगी। और ख़ासकर जो पावर की क्राइसिस थी, आम लोगों को, गरीबों के लिए पावर की सहूलियत, चाहे वो मैरिज असिस्टेंस का है, जो भी हमने मैनिफेस्टो में लिखा, राशन के बारे में मैनिफेस्टो में जो भी दिया था पार्टी ने, तो इंशाअल्लाह रहमान वो आज बजट में हमने करके दिखाया उमर साहब ने। और बजट से मुतालिक जहां सियासी रद्दअमल सामने आ रहे हैं, वहीं अवाम की जानिब से भी मिले जुले रद्दअमल सामने आ रहे हैं।
है। ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऐसा है, पॉलिटिकल स्टंट्स ऐसे है। आपने मैनिफेस्टो में देखा होगा, सबके लिए कहा था 200 यूनिट्स बिजली फ्री, राशन 10 किलो पर हेड फ्री कहा था ना। तो अब क्या हो गया? ऐसा लग रहा है कि जैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक दूसरे के साथ मिले जुले हैं, हाथ में हाथ बांधे हुए काम कर रहे हैं। और मैनिफेस्टो अलग चीज़ होता है लोगों को धोखा देने के लिए, और कुर्सी अलग चीज़ होती है। जब कुर्सी आती है तो फिर लोगों के लिए कुछ नहीं सोचा जाता है। जो भी हुआ है 10 केजी चावल फ्री किसके लिए है? AAY के लिए है ना। तो कितने सारे AAYs है यहाँ पे? जी हाँ, ये बहुत ही अच्छी बात है जहाँ पे आज चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने, आप देखिए हुकूमत को अभी कम ही टाइम हुआ, बजट सेशन चल रहा है, उन्होंने आज बहुत सारी चीज़ों का ऐलान कर दिया है बजट सेशन में, लेजिस्लेटिव असेंबली जम्मू में। मगर अगर हम बात करें, जो ही उनका इलेक्टोरल मैनिफेस्टो बना हुआ था, जो ही उनकी हुकूमत आ रही थी, उन्होंने अपने इलेक्टोरल मैनिफेस्टो में ये नहीं बोला था कि वो खाली पर्टिकुलर किसी कैटेगरी को यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, लाइक AAY दे हैव ओनली प्रोवाइडेड दिस 200 मीटर्स, और जो यहाँ पे 10 kg राशन है, इट इज only allotted to the AAY family. Why not other categories? जिस तरह से आज उमर अब्दुल्ला ने असेंबली में जो बजट पेश किया गया जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए, एक्सपेक्टेशंस पहले ही थी। अब उन्होंने जो कुछ फैसले लिए हैं, खासकर AAY कैटेगरीज, ये वो कैटेगरी है जो BPL से भी नीचे है। और देखना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर में ऐसे कितने लोग हैं, उसकी मकदार जो है वो बहुत ज़्यादा कम है यहाँ पर। लेकिन उन्होंने एक स्टेप उठाया है। हालांकि मैनिफेस्टो में वादा किया गया था सबके लिए फ्री होगा, लेकिन मैं कह सकता हूँ शुरुआत है। क्या आने वाले समय में रहेगी रणनीति उनकी, क्या वो इस चीज़ को आगे बढ़ा पाएंगे? लेकिन जिस तरह से AAY कैटेगरीज के लोगों को बिजली फ्री मिली है और एडिशनल राशन मिला है, यहाँ की फ़ीमेल्स के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन फ्री कर दी गई वो अच्छी बात है। और मैरिज असिस्टेंस को लेकर जो मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में तवी फेस्टिवल का इफ्तिताह अंजाम दिया। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जुमा को हरी तारा चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम तवी फेस्टिवल का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि एक अनोखा और अपने आप में मुनफरद मेला है, जिसमें फ़न व अदब और तारीख़ में एक नए जो है बाब का आगाज़ किया है। यासीन मलिक की समाअत मुकदमात में CBI के आज यानी इसको एडजर्न कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में। आइंदा समाअत 4 अप्रैल को होगी। CBI ने अगवा के मुकदमे से जुड़े एक मुकदमे की वजह से मुल्क की कौमी सलामती के ख़तरे का हवाला देते हुए ट्रायल को जम्मू से नई दिल्ली मुंतकिल करने की कोशिश की है। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने जुमा को CBI की तरफ से 2 मुकदमात में जेल में जो महरूस हैं इनकी समाअत का जो मामला था वो आज सुप्रीम कोर्ट में एडजर्न हुआ और 4 अप्रैल को आइंदा समाअत होगी। मीरवाइज उमर फारूक ने आज जामा मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा अदा की और नमाज जुमा से क़ब्ल उन्होंने खिताब किया और माह रमज़ान के फ़ज़ाइल के साथ साथ इस्लाह मुआशरा के हवाले से बात की। मुसलमानों अल्लाह तबारक व तआला के अल्लाह ताला फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, तो ये पे आए माह रमजान रोज़ेदारी फर्ज कर क्या उतने करीब हासिल तकवा। अल्लाह ताला फरमाया 20 जाए कुरान में। सरमाई तातीलात के बाद आज से जम्मू कश्मीर के विंटर जोन्स में स्कूल्स बहाल हो गए। इस मौके पर बच्चों ने भी अपना रद्द-ए-अमल दिया। नाम मुकाशा नूर है और मैं क्लास 9 से हूँ, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी बानीहाल। आज हम करीब 3 महीने बाद स्कूल आए और हमारा सेशन जो है स्टार्ट हुआ, तो हमें स्कूल आके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। जो हमारा स्कूल है बहुत अच्छे से फंक्शन कर रहा है और हम चाहेंगे कि जो बाकी के स्कूल्स भी है वो भी हमारे स्कूल की तरह अच्छे से फंक्शन करे। हमारा बहुत अच्छे से वेलकम हुआ यहाँ पे और पहले दिन हमारा बहुत मन लगा और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारा सेशन इसके बाद जो और भी ज़्यादा अच्छा चलेगा। मेरा नाम जासिर शरीफ है और मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी की स्टूडेंट हूँ और मैं आज 9th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ।
तो आज हम करीब 3 महीने के बाद स्कूल आए और एक नया वार्म वेलकम हमारे यहाँ पर हुआ, क्योंकि हमारे टीचर जो है वो फुल एनर्जी के साथ यहाँ पर आए। और मैं चाहूँगी जैसा वार्म वेलकम हमारे यहाँ हुआ, क्योंकि हमारा सेशन भी स्टार्ट हो चुका है और फुल रेगुलर क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी है, मैं चाहूँगी कि जैसे बाकी स्कूल्स भी ऐसे ही फंक्शन करें जैसे गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी फंक्शन कर रहा है। क्योंकि ऐसे हमने देखा है जब स्कूल स्टार्ट होते हैं पहले का मंथ तो ऐसे ही चला जाता है, लेकिन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी में ऐसा कुछ नहीं है। हमारा आज डे 1 है और प्रॉपर क्लासेस हमारी स्टार्ट हुई और मैं चाहूंगी कि बाकी स्कूल्स में भी ऐसा ही हो। थैंक यू। मैं क्रुंगसू अनंतनाग से आया हूँ, मेरा नाम मोहम्मद जहान खान है। स्कूल खुले हैं, बहुत अच्छा हुआ, घर में तंग आ जाते थे, बहुत अच्छा हुआ स्कूल खुले। मैं बहुत एक्साइटेड था स्कूल खुलेंगे, बहुत खुश भी था स्कूल खुलेंगे। तो मेरा नाम वाफिक यूसुफ सौदागर है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम घर में बहुत तंग आते थे, हमें स्कूल में एक्टिविटीज़ कराते हैं, जैसे पढ़ाते भी अच्छा मतलब कि एक्टिविटीज़ भी कराते हैं, तो मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरा नाम ज़ारा शबीर, मैं कादीपुरा अनंतनाग से हूँ। मैं बहुत खुश हूँ ताकि हमारे स्कूल खुल चुके हैं। घर में हम सारे बच्चे बोर हो जाते थे, स्कूल में हमें एक्टिविटीज़ भी कराते हैं। करीबन 3 महीने के बाद कश्मीर में आज स्कूल फिर से खुल गए हैं और स्कूली बच्चे जो है काफ़ी एक्साइटेड हैं और काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। बच्चों का कहना है कि हम घर में बहुत तंग आते थे और यहाँ स्कूलों में बहुत मज़ा आता है। आज स्कूल खुलने के साथ ही बच्चों में काफ़ी जोश खरोश पाया जा रहा है। गुलजार अहमद गनाई, 4 TV न्यूज़, अनंतनाग। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने 1,12,310 करोड़ रुपए का बजट जम्मू कश्मीर असम्बली में किया पेश। AAY स्कीम, राशन, बिजली की मुफ्त फराहमी का किया ऐलान। सेहत व तालीमी शोबे पर दी जाएगी तवज्जो। जो वादे किए गए थे बजट में इसको शामिल किया गया। NC लीडरान ने बजट को करार दिया अवाम दोस्त। कांग्रेस ने भी NC हुकूमत के पेश करदा बजट का किया खैर मकदम। गुड इंटेंशन वीक इम्प्लीमेंटेशन, जीरो एक्शन। बजट पर PDP के रुकन असम्बली वहीदुर रहमान पर्रा का रिमार्क। बीजेपी रुकन असम्बली सुनील शर्मा ने स्पीकर को लिखा मकतूब। सेशन के दौरान पाकिस्तान से मुताल्लिक़ किए गए रिमार्क्स हज़फ करने किया मुतालबा। पार्टी लाइन से हटकर वक़ार रसूल वानी का बानीहाल में एहतजाजी मुजाहरा। महकमे बरक़ी और जम्मू कश्मीर सरकार के खिलाफ किया सख्त एहतजाज। यासीन मलिक के मुक़दमे की समाअत को सुप्रीम कोर्ट ने किया एडजर्न। 4 अप्रैल को होगी समाअत। इसी के साथ 4 TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज़।